Yes, look here. Students, very important question is starting. Now we are discussing the exercise 9 of NCERT, that is height and distance, and this is question number 6. What is in question number 6? 1.5 meter tall boy is standing from at some distance from 30 meter high building, and he saw that angle of elevation is how much? 30 degree. 30 degree. After moving some distance, the angle of elevation becomes 60 degree. Suppose he moves x distance, AB is y and DCE. DE is the building. So yeah, you have to find BF. You have to find the BFS. After moving some distance, the angle of elevation becomes 60 degree. The primary position of boy is here. The eye of the boy is here. The angle of elevation is 30 degree. After moving some distance, it becomes 60 degree. How much distance he moved? You have to find x. So look here, since the eye is 1.5 meter above, so this effective distance will be 30 minus 1.5, that is 28.5. Now look here in triangle DFC. In triangle DFC, always you have to take right angle triangle and you will apply the application of trigonometry. 28.5 upon y is equal to tan 60. एक बात ध्यान रखना है, जो नहीं निकालना उसे एक साइड कर देना, y नहीं निकालना कोई x निकालना, y एक साइड कर। तो ये 28.5 upon y is equal to under root 3. This implies y is equal to 28.5 upon root 3. ये पहला। अब आप इक्वेशन ले लो DBC. इन ट्रायंगल DBC 28.5 upon x plus y is equal to tan 30. This implies 28.5 upon x plus y is equal to 1 by root 3. 28.5 root 3 is equal to x plus y. So you have to find x. So y will 28.5 root 3 minus x is equal to y. This is second. Look here, both are equal to y. So from first and second, you will take from first and second. What will happen? 28.5 upon root 3 is equal to 28.5 root 3 minus x. So you can write here x is equal to 28.5 root 3 minus 28.5 upon root 3. You can take common 28.5. So root 3 minus 1 by root 3. That is 28.5. 3 minus 1 upon root 3. Root 3 into root 3, 3. So 28.5 into 2 upon root 3. Rationalize. You will get 3. 9.5 into 2 under root 3. 19 root 3 meter. So x will be 19 root 3 meter. How much distance he covered? 19 root 3 meter. So it's a very simple. So you can solve this, guys. And the next one is question number 7. One by one. I hope you will solve it and you will note it down. Okay. Now come on, question number 7. Height and distance is a very simple. Only you have to draw proper figure. आपको केवल प्रॉपर फिगर ड्रा कर देना है, और अगर आपने प्रॉपर फिगर ड्रा कर लिया ध्यान से समझ के, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of the transmitter fixed on the top of a 20 meter high building is 45 and 60. देखिए क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर की ऊंची,
एक क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि एक 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, ये 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है और आप यहां एक ग्राउंड से एक पॉइंट से देख रहे हैं, ये बीसी बिल्डिंग है और इस पर एक टावर लगा हुआ है, ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर है सीडी। ये 20 मीटर बिल्डिंग है, बीसी द बिल्डिंग, बीसी क्या है? बिल्डिंग है और सीडी क्या है? टावर है। यहां पे एंगल आपका 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल है 60। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। लेट हाइट ऑफ टावर आपने क्या कर दिया? h मीटर। तो हाइट ऑफ टावर h मीटर कर दिया, तो अब आपको ये डिस्टेंस x मान लो, ये आपको नहीं निकालना है, वैसे तो आपको डायरेक्ट इसमें निकल जाएगा। तो पहला कौन सा ट्रायंगल ले लोगे? इन ट्रायंगल ABC, इसमें एक अननोन है 20 अपॉन x इज इक्वल टू tan 45। यू नो tan 45 वैल्यू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20। हमने कहा था जो नहीं निकालना उसे एक तरफ कर लेंगे, वैसे इसकी वैल्यू निकल गई है। अब ट्रायंगल हम DAB ले लेंगे, इन ट्रायंगल DAB। लुक हियर, 20 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू tan 60, x 20 प्लस h इज इक्वल टू x √3, तो h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। सो हाइट ऑफ टावर इज √3 माइनस 1 मीटर। तो बहुत ही आसान है, इस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज से बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 8। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का बना देते हैं फिगर, बिल्कुल सेम चीज है। उसमें क्या दिया हुआ है? ये हाइट गिवन है, ये आपको निकालना है। क्या है? पेडिस्टल है और उस पे एक स्टैचू है और स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है। तो आपके लिए बहुत आसान है कि अगर ये हाइट निकालना हो, ये गिवन हो, या ये गिवन हो, ये निकालना हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। सो वंस अगेन लुक हियर क्वेश्चन नंबर 8, देन आई विल come to another question. Question number 8. Listen carefully. What is question number 8? A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. Now look here pedestal, after that statue, after that statue. Now the point on the ground, pedestal height you have to find. AB is pedestal and BC is a statue, that is 1.6 meter. This angle is 45 degree and this angle is 60 degree. You have to find height of pedestal. AB is pedestal. Now look here, H, that is H. Assume this one A, B, C, D, AC, X meter. Now come on in triangle ABC. Same thing, you will apply H upon X is equal to tan 45, and you know tan 45 is 1, so X is equal to X. And again in triangle ADC, in triangle ADC, H plus 1.6 upon X is equal to tan 60. You have to find only H, not X. H and X is same, so you will find H. You will get X also. So H plus 1.6 is equal to X √3. So H plus 1.6 is equal to H √3. You will get H √3 minus H is equal to 1.6. H is equal to
1.6 upon root 3 minus 1. Root 3 minus 1 will become rationalize root 3 plus 1 and root 3 plus 1. 1.6 root 3 plus 1 upon 3 minus 1 2. So H is equal to 0.8 root 3 plus 1 meter. So height of the pedestal will be H 0.8 into root 3 plus 1 meter. So very simple. So in this way you can solve the question. And now look here, the next one is question number 10. Now question number 10 is slightly different. This is question number 8. Now question number 9 is also same. Question number 8. This is question number 8. Now question number 9, once again. The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. Now look here. Tower, next question number 9, tower and building. Tower is bigger one and building is smaller. जिसको देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस चीज को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है यानी उसकी हाइट बड़ी है. तो ये आपकी हाइट है टावर जिसकी हाइट है 50 मीटर. ये है बिल्डिंग. अब आप टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है. इस AB इज टावर एंड CD इज बिल्डिंग. और जब आप इसके बेस से इस बिल्डिंग को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग H. CD is building and AB is tower. Tower is 50 meter already given. You have to find the height of building. Look here. एक बात ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जिस चीज की हाइट ज्यादा होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा. जैसे ऊपर देखना होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी गर्दन ऊपर उठती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा. अब आ जाइए इस ट्रायंगल में आपको x की वैल्यू दी जाएगी इन ट्रायंगल ABC. 50 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 60. तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2. x आ गया. अब ट्रायंगल DAC ले लो इन ट्रायंगल ADC. h अपॉन x इज इक्वल टू tan 30. तो h इज इक्वल टू x अपॉन रूट 3. x is equal to 50 upon root 3 into root 3, that is 50 by 3 meter will be height of building. So answer हो गया h is equal to 50 by 3. You can make in the mixed fraction also. So that is question number, which question? Question number 9. It is question number 9. Now what is in question number 10? Look here, question number 10. One by one, you are going to finish the exercise. 10, 11, there are 16 questions. So one by one, you are going to finish. Look here, question number 10. What is given in question number 10? Look here, question number 10 is given two poles of equal height. देखिए दो पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट की और इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर. AB and CD are two poles having same height. और ये डिस्टेंस AC is given 80 मीटर. एक पॉइंट है जहां से देखने पर एक की एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और एक का है 30. ये 60 है और ये 30. और आपको पता है कि जितने बिल्डिंग के पास होंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगी और जितना बिल्डिंग से दूर जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगी. तो अगर ये x मीटर हो जाएगा तो ये 80 माइनस 60. तो आप पहले ट्रायंगल AB ले लो इन ट्रायंगल AB. यह आपको समझ में आया कि दो आपके पास
दो पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। एक बीच में पॉइंट है जहां से इन दोनों कोण को देखने पर एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एक का 60 डिग्री। और आपको बताया कि जो पास में होगा वो ज्यादा एंगल बनाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो फिगर बनाते समय भी नहीं ऐसा मत करना कि यहाँ 30 लिख दो, यहाँ 60 लिख दो, तो बड़ा awkward फील होगा कि लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं है। जो बिल्डिंग के पास में होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनाएगा। तो आप पहले आप इस ट्रायंगल के ले लो, तो इन ट्रायंगल ABEH अपॉन x इज इक्वल टू tan 60, h इज इक्वल टू x√3, ये पहला। अब ट्रायंगल DEC ले लो, इन ट्रायंगल DEC h अपॉन 80 माइनस x इक्वल टू tan 30, h इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। और आपको x√3 है, h की रख दो वैल्यू यहां, या x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3 फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 20। तो ये पॉइंट 20 मीटर हो गया, तो AE हो गया 20 मीटर और EC हो जाएगा 60 मीटर और H कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। तो दिस विल बी द आंसर। तो 1 by 1 यू आर गोइंग टू फिनिश। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत आसान था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में तो आपके पास बिल्कुल फिगर दिया हुआ है, सेम कंडीशन है कि एक 20 मीटर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास बहुत ही आसान है, वो आपके पास फिगर दिया हुआ है। कुछ दूर जैसे जैसे आप किसी भी बिल्डिंग के पास जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो क्या कह रहा है, टीवी टावर, एक टीवी टावर है जो आपके फिगर में दिया हुआ है। टीवी टावर आप उसी तरह बना सकते हैं। और एक पॉइंट है टीवी टावर AB है, C और D, ABC और D। इस D पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और AB और इस C पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाता है। और कितना डिस्टेंस चलने के बाद 20 मीटर। You have to find height of TV tower. What you have to find? Find from another point 20 meter away from the angle of elevation of top of tower. Find the height of tower and width of the canal. तो कैनाल की विड्थ निकालनी है आपको, ये BC, x निकालना है और x निकालना। तो AB इज इक्वल टू टावर है, दैट इज h मीटर, और x कैनाल है। तो इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ट्रायंगल ABC h अपॉन x tan 60, तो आपको पता है h इज इक्वल टू x√3 tan 60 की वैल्यू। उसके बाद इन ट्रायंगल ADB में आ जाएंगे h अपॉन 20 प्लस x tan 30, तो h इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन, और h की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहां दिया है, कितना है x√3 फ्रॉम फर्स्ट, x√3 इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन √3। दिस इंप्लाइज 3x is equal to 20 plus x, 2x is equal to 20, x is equal to 20। तो ये आपको ये भी जान ले 30 से 60 जब आते हैं तो जितना ये डिस्टेंस उसका आधा ही बचता है। तो h is equal to क्या हो जाएगा 10√3। तो आपको पता चल गया कि हाइट ऑफ टावर हो गया 10√3 मीटर। तो टावर हाइट क्या हो गया 3 मीटर, और विड्थ कितनी हो गई, तो ये आपने विड्थ निकाल लिया, टावर निकाल लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई विल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45, है ना। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। देखिए एक बिल्डिंग है, थोड़ा इसमें फिगर बदलेगा 12 में।
एक 7 मीटर की बिल्डिंग है और उसके ऊपर अगर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एक बिल्डिंग है, इससे देखते हैं और इस टावर को देखते हैं। ये जो 7 मीटर की बिल्डिंग है, AB इस बिल्डिंग, और इसको टावर को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? द क्यूबिक टावर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री। ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर हो जाएगा, इतनी हाइट AB, और ये C मान लो, यक्स मान लो, इसे एक बिल्डिंग है AB जो 7 मीटर की है, यहां से टावर को टॉप पे देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और यहां से जो नीचे देखने पे टावर के फुट को देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाता है, डिप्रेशन 45 हो जाता है। तो आपको निकालना है टावर की हाइट। तो पहले ले लो इन ट्रायंगल ABCD एंड E, इन ट्रायंगल CBE, इन ट्रायंगल CBE, x upon x is equal to tan 60, x is equal to x। देखिए पहला इक्वेशन। अब आ जाओ इन ट्रायंगल EBA, इन ट्रायंगल EBA 7 upon x is equal to perpendicular upon base is equal to tan 45, तो x is equal to 7 meter। So you can find h is equal to 7√3 from first। तो टोटल हाइट हो गया 7 plus 7√3। You can take common 7√3 plus 1 meter। So this will be the height of the tower। Clear? So I hope कि ये आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। 12वां और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो एक लाइट हाउस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन 12। नाउ लुक हियर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और सी लेवल पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2C 30 एंड 45 डिग्री एग्जैक्टली बिहाइंड द ईच अदर। तो एक लाइट हाउस है, क्वेश्चन 13 लाइट हाउस है, 75 मीटर हाइट है और इसके ठीक 2 शिप है, शिप 1 शिप 2, और यहां से और यहां दोनों जगह का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दिया है? 30